तो आयुर्वेद की थेरेपी बेस्ट इस करके है कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये साडी बॉडी ਨੂੰ हेल्दी रखती है, साडे इम्यून सिस्टम ਨੂੰ हेल्दी रखती है कि किसी तरह का जो साइड इफेक्ट नहीं होता। तो कुछ थेरेपीज ਦੇ ਵਿੱਚ साइड इफेक्ट ਦੇ थोड़े चांस रहते हैं, इस करके आयुर्वेद ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਸਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਬੇਲਾਲ ਕੋੜਾ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਭਾਗਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਤੇ ਨਾੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ है। विगत 25 साल से मैं इनफर्टिलिटी में ट्रीटमेंट कर रही हूँ। इनफर्टिलिटी और कैंसर के जो भी पेशेंट है उनके लिए हमने अभी हमारा ये कैंप रखा है और नाड़ी में करती हूँ मैं। नाड़ी के इंटरनेशनल स्पीकर हूँ, मेरे फॉरन में भी नाड़ी के लेक्चर है और यहाँ की कॉलेज। तो नाड़ी का जो एक एंकर नाड़ी का जो पार्ट है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, वो वाली नाड़ी भी करती हूँ। तो एक्चुअली नाड़ी से क्या होता है ना कि पेशेंट को बहुत सारे ढेर सारे टेस्ट वगैरह नहीं करने पड़ते हैं। नाड़ी से हमें पता चल जाता है कि क्या बीमारी है और नाड़ी से निदान जो होता है ना वो अचूक निदान होता है, क्योंकि टेस्ट में तो भी गलती हो सकती है लेकिन नाड़ी हम डायरेक्ट पेशेंट का हाथ पकड़ के कर रहे हैं। ਬੇਔਲਾਦ ਜੋੜਿਆਂ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੈਦਿਕ ਕਰਮਾ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹਸਪਤਾਲ। IVF ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਲਾਦ ਦੀ ਦਾਤ। ਵੈਦਿਕ ਕਰਮਾ ਹਸਪਤਾਲ ਕਾਦੀਆਂ ਰੋਡ ਬਟਾਲਾ ਵੱਲੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਔਲਾਦ ਕੈਂਸਰ, ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗ, ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਦਿਕ ਕਰਮਾ ਹਸਪਤਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਿੱਥੇ तमाम ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ IVF ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕੇਰਲਾ ਪੰਚਕਰਮਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਭਾਗਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋ ਕਿ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਅਤੇ ਨਾੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਬੇਔਲਾਦ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਬੰਦ ਅਤੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਰਸੌਲੀ, ਘੱਟ ਇਮਿਊਨਿਟੀ, ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਆਦਿ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਬਿਨਾਂ IVF ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਵੈਦਿਕ ਕਰਮਾ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਸਕਾਲੇ ਅਸੀਂ ਬੈਸਟ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਰਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲਾ ਜਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਵਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਬੇਲਾਲ ਕੋੜਾ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਭਾਗਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਤੇ ਨਾੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਔਰਥੋ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਕਰਮਾ ਤੋਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਪੇਨ ਹੈ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਜਾਂ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਔਰਥੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੈਦਿਕ ਕਰਮਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਤੇ। ਤੇ ਵੈਦਿਕ ਕਰਮਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੈਸਟ ਹਸਪਤਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੈਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਜੋ ਬੈਸਟ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੇ, ਉਹ ਹੈ ਵੈਦਿਕ ਕਰਮਾ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣਾ ਹੈ, तो जरूर सानू थोड़ा टाइम दो, एक सानू अर्ली अप्रोच करो। मैं इस करके कहना चाहता कि कई बार कैंसर के भी पेशेंट है सानू लास्ट मोमेंट पर ट्राई करते हैं, तो चलो जो किसी वालों सब पास जवाब आता फिर असं आयुर्वेद नहीं, आयुर्वेद स्टार्टिंग सुन के सानू ज्यादा बेस्ट रिजल्ट मिल सकते। जो सानू पता चल गया कि सानू कैंसर स्टार्ट होगा उस स्टेज है, सानू अर्ली अप्रोच जी वैदिक कर्मा हॉस्पिटल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट वैदिक कर्मा इस करके ज्यादा मैं कह रहा क्योंकि देखो वैदिक कर्मा स्पैशलिस्ट डॉक्टर ने जिन्होंने PhD आयुर्वेदा उपर की हुई है, इतों तक के नाड़ी विज्ञान के उपर बुक तक लिखी हुई है। उस स्पैशल डॉक्टर साढ़े को आते हैं, स्किन के स्पैशलिस्ट डॉक्टर साढ़े को सुना राती स्पैशल नागपुर को आते हैं। असं कैंप भी 3 महीने बाद ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन डेली भी OPD जी है साढ़े हॉस्पिटल हर एक ट्रीटमेंट मिलती है, अलग अलग डॉक्टर की है। डेली 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੈਦਿਕ ਕਰਮਾ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜੀ
कि ये ਅਸੀਂ ट्रीटमेंट आयुर्वेद राਹੀਂ कराना चाहते हैं। आयुर्वेद ਉੱਪਰ विश्वास करके थोड़ा टाइम ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ विश्वास ਜਿਹੜਾ ਉਹ स्ट्रॉन्ग ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। विश्वास के नाल ही ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बहुत ਵਧੀਆ ट्रीटमेंट है। मैं किसी भी ट्रीटमेंट में किसी भी थेरेपी की इंडिया नहीं करता, कोई थेरेपी वाली सब थेरेपी अपनी जगह बहुत बेस्ट है। जो जिस थेरेपी में तुमको ट्रीटमेंट जिसको किसी को आराम आ रहा है वो सबसे बेस्ट थेरेपी है। तो आयुर्वेद की थेरेपी बेस्ट इस करके है कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये साडी बॉडी को हेल्दी रखती है, साडे इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखती है कि किसी तरह का जो साइड इफेक्ट नहीं होता। पर कुछ थेरेपीज में साइड इफेक्ट के थोड़े चांस रहते हैं, इस करके आयुर्वेद जो है वो ज़्यादा बेस्ट इस करके ही माना जाता है कि वो साइड इफेक्ट। सर वैदिक कर्मा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल SCF 3231 अर्बन स्टेट मार्केट कादियां रोड के ऊपर से। मैं डॉक्टर भाग्यश्री लावंडे महाराष्ट्र नागपुर से आई हूँ। यहाँ वैदिक कर्मा में हमने अभी कैंप रखा है। कल जलंधर में कैंप था और अभी आज और कल 2 दिन का कैंप हमने वैदिक कर्मा हॉस्पिटल में रखा है। विगत 25 साल से मैं इनफर्टिलिटी में ट्रीटमेंट कर रही हूँ। इनफर्टिलिटी और कैंसर के जो भी पेशेंट है उनके लिए हमने अभी हमारा ये कैंप रखा है। और नाड़ी भी करती हूँ मैं, नाड़ी के इंटरनेशनल स्पीकर हूँ। मेरे फॉरन में भी नाड़ी के लेक्चर्स हुए हैं और यहाँ के कॉलेज की। तो नाड़ी का जो एक एंशन नाड़ी का जो पार्ट है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, वो वाली नाड़ी भी करती हूँ। तो एक्चुअली नाड़ी से क्या होता है ना कि पेशेंट को बहुत सारे ढेर सारे टेस्ट वगैरह नहीं करने पड़ते हैं। नाड़ी से हमें पता चल जाता है कि क्या बीमारी है। और नाड़ी से निदान जो होता है ना वो अचूक निदान होता है, क्योंकि टेस्ट में तो भी गलती हो सकती है लेकिन नाड़ी हम डायरेक्ट पेशेंट का हाथ पकड़ के कर रहे हैं, उसके हाथ भी देख के, तो इससे हमें इसमें गलती होने की भी गुंजाइश नहीं होती है। और हम पूरे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट को, पूरा सेफ मेडिसिन होते हैं। और यहाँ बहुत से पेशेंट को भी फायदा हो चुका है, जिनको बायोलैटरल टिश्यू ब्लॉक है, जो हम दोनों तंग है, जिनको गर्भाशय में बुखार है, जिनको पीसीओडी है, जो जिनमें शुक्राणु की कमी है जेंट्स लोगों में, या जिन लोगों में काउंट की कमी है, शुक्राणु की मोटिलिटी की कमी है, इनका भी हम ट्रीटमेंट करते हैं। और हम काउंसलिंग भी करते हैं, जिनको बच्चे नहीं है, हस्बैंड वाइफ कपल का हम काउंसलिंग करते हैं, उनको सलाह देते हैं कि इनफर्टिलिटी किस किस वजह से होती है। जैसे खान पान का ध्यान रखिए, नशीले पदार्थों से दूर रहिए, प्रॉपर नींद लीजिए, हस्बैंड वाइफ दोनों का बॉन्डिंग अच्छा रखिए, स्ट्रेस को कम करिए, है ना, क्योंकि ये कुछ कारण होते हैं। और बहुत गलत धारणाएं भी होती है कभी कभी हस्बैंड वाइफ कपल में। और आजकल कभी कभी ना उनको बच्चे नहीं हुए तो घरेलू प्रेशर भी होता है, तो हम उसका भी उनसे काउंसलिंग करते हैं कि वो घरेलू प्रेशर से भी खुद को किस तरह से ओवरकम करे और वो प्रेशर से खुद को संभाले। तो ये भी इसमें किया जाता है, काउंसलिंग भी किया जाता है, उनको एश्योरेंस भी दिया जाता है। वैदिक कर्मा तो तारा सिंह उपल जी है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि उनकी वजह से मैं बटाला पहुंची हूँ। वैसे तो मैं ग्वालियर, नागपुर, रायपुर, मुंबई, बाकी जगह भी मेरे विजिट होते हैं ऑल ओवर इंडिया में। और फिर इसी के अंतर्गत मेरा यहाँ पंजाब में भी विजिट होता है। तो मैं सबसे कहूंगी कि यहाँ पे बहुत अच्छा आयुर्वेदा का हमने पूरा सेटअप काम किया है, जिसमें बाकी बीमारियों का भी पूरा इलाज होता है। यहाँ बाकी डॉक्टर्स भी होते हैं आयुर्वेदिक, और यहाँ पूरे डॉक्टर्स है सब। मुझे लगता है कि हमने सही जगह पे जाके ऑथेंटिक डॉक्टर से जाके हमारी चिकित्सा करनी चाहिए। तो यहाँ सभी डॉक्टर्स प्रेजेंट है, तो आप सबने इस चिकित्सा का लाभ लेना चाहिए और खुद को स्वस्थ करना चाहिए। तो मैं बटाला के सभी बटाला वासियों को कहना चाहूंगी कि अभी कल भी हमारा कैंप है, तो आप यहाँ आइए और सेवा का मौका दीजिए। धन्यवाद।